वीडियो और आप आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो देखने हम जा रहे हैं, आई थिंक इसकी हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इन चीजों को मैनेज कर सकें। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है सीक्रेट टू हैंडलिंग टॉक्सिक पीपल, प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रॉम स्वामी सर्वप्रियानंदा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Welcome to our YouTube channel where wisdom meets inspiration. In this channel, we share valuable insights to help you become the best version of yourself. Our content is designed to uplift your spirit and enrich your life. Make sure to subscribe to our channel to stay connected with this incredible journey. Click the subscribe button below. The source of difficulty is biggest source of difficulty. Not even illness, not even financial problems. Really, often a real big source of difficulty is other people in our lives. Sarth, he said, hell is other people. Hell is other people. So other people in our lives. Let me end with this. Sri Ramakrishna's formula, 3-step formula of dealing with difficult people in your lives. And see how different this is from all the positive psychology stuff and the counseling stuff and all that we hear. All very wise things, but this is a spiritual solution and a very practical spiritual solution. 3-step formula for dealing with difficult people in your life. First step, patience. We are often impatient with others. We often are too quick to judge others. Sri Ramakrishna says, in Bengali, this works only in Bengali. I'll tell you the original and then try to translate. Sha, 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 je shoy, she roy, je na shoy, tad na shoy. Translated, it means forbear, be patient, forbear. Those who forbear, they survive. Those who do not, those who react in violence or breakdown or whatever it is, they perish. That's step 1. But he doesn't stop there. Practice forbearance. Be patient, be steady, put up with a lot. I remember this monk who told me this, very dynamic senior Swami. He told me a story of his early days as a monk. He was this novice in a monastery and he was not getting along well with some of the other monks who were senior to him. Now he used to write letters, in those days postcards, to Swami Dhireshananda, who was a very great monk of our order, whom I never saw but just missed him by a few years. And Swami Dhireshananda would send him words of wisdom and encouragement. So one day he wrote to Swami Dhireshananda, I can't bear it anymore. I can't bear these people anymore. I'm going to quit. And he waited for the reply. You know, in some ways it's good that they didn't have email. Now they want a reply that very same day, the very same, like within hours or minutes. There you have to wait for a month for the quickest reply. So a month later, the little note, this postcard comes back with one line. And it said, remember, there are many who are bearing with you also. He said that made me furious. I thought I would get some words of sympathy from him, encouragement from him. He said, there are many people who are putting up with you right at this moment. If they can, why can't you put up with them? So the counsel of patience, strength. The patient person is the strong person. The person who reacts is the weak person. Step 1, only step 1. Step 2, but if this is not possible, there are people whose difficulty level is at another level. You can't be patient with them. And so Sri Ramakrishna, he says there, hiss but don't bite. So there's the story of the brahmachari who came across a village and there was the villagers told him, don't go by that way, there's a poisonous cobra who will bite you. The brahmachari said, no, he won't do anything to me, I know the mantras and all that. And the cobra came hissing at him to bite him, and the brahmachari said, hey, stop that, don't do that. The cobra said, what should I do, teach me. Of course he spoke, I'm sure, in Sanskrit. And the brahmachari said, look, here is the mantra, repeat the mantra. And what should I practice? Practice, non-harm, don't harm anybody. Don't bite anybody, don't bite anybody. And then he left.
Years later, he passed through the same village again. And then he asked, "Where is the cobra?" And the villagers said, "Oh, that we haven't seen the cobra in years, must be dead." "No, he can't die until he attains enlightenment. I gave him a powerful mantra." And then he went looking for the cobra, and finally the cobra crawled out of a hole, and his body was emaciated, it was broken, and the cobra was very sweet. It came and bowed down to the brahmachari. And the brahmachari said, "What happened to you?" "Oh, nothing." "No, something happened to you." Then the cobra thought, and "Oh yes, years ago these naughty boys who were playing around, and they realized I wasn't going to bite them. So one of them picked me up by the tail and swung me around and smashed me into the ground, and so it broke my vertebra. And okay, it's all right. They're kids. It's no big deal." And then the brahmachari said, "Oh, what have you done? I told you not to bite. I didn't tell you not to hiss." So he said, "Hiss, don't bite." Sri Ramakrishna's second level formula. You can be formidable. You can be a person nobody will fool with, without actually harming people. There's a lot of psychological research which shows often we invite aggression, violence, manipulation. If you're simple, straightforward, strong, the way you carry yourself, the words you speak, the life you lead, people will not, some difficult people will not mess with you. Second level. Third level, there are some whose difficulty level is even beyond this. So even that will not work. Third level, final level, Sri Ramakrishna's advice. Do not embrace the tiger Narayana. So that everybody is Narayana, everybody is God, God is everywhere. Tiger is also God, but that doesn't mean you're going to embrace the tiger. So what do? Bow down to the tiger Narayana from a distance and say, Tiger Narayana. Don't go near the tiger Narayana. So you have to avoid. There you have to clearly, you have a goal in life, a spiritual goal in life. You can't let other people mess it up. When we have a material goal in life, you want to get a degree, you won't let people disturb you. You're working hard for your PhD or something, you don't let people disturb you. You are working hard to make $1 million, you don't let people disturb you. You are working hard in a laboratory to scientific research, you don't let people disturb you. You are working hard to find God, don't let people disturb you. So, gulf of distance, maintain that distance. Become Swami Vivekananda's messenger. Share the video with 3 of your friends. एक इंसान को ना ज़िंदगी में ऐसे इंसान की, ऐसे मेंटोर की ज़रूरत ज़रूर रहती है जो कि भाई उसे जो है अच्छे तरीके से ज़िंदगी में जो है वो गाइड कर सके। बेशक वो ज़िंदगी को कोई भी पड़ाव हो, आपको हमेशा मेंटोर की ज़रूरत जो है वो रहती ही रहती है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा भाई मैंने इतना जो है वो हासिल कर लिया एक ही इंसान से कि मुझे अब कोई और नहीं भी सिखाएगा ना तो चलेगा। लेकिन हाँ भाई ये हकीकत है, आपको हर कदम पर जो है ना कोई सीख मिलती है। अभी जैसे आज की वीडियो की अगर बात करूँ तो भाई ज़िंदगी में ना सब्र करना जो है ना वो धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर सब्र के ना आपको कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जल्दी अचीवमेंट मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी देर से मिलते हैं। जिनको देर से मिलती हैं वो एकदम हमारे सामने आते हैं और हम कहते हैं यार इसे तो बड़ी जल्दी सब कुछ मिल गया है। बिल्कुल, बट आई थिंक भाई मैं अपने आप को लेकर बात करूँगी, मैं कहूँगी कि वाकई में ये चीज़ है। आप जितने इम्पेशेंट होते हो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है सबसे बड़ी कि हमें ऐसी टीचिंग सिखाई नहीं जाती कि लाइक अगर मान लो कि आपको सब्र करना है तो वो सब्र बड़ा ना डिफरेंट लेवल का सिखाया जाता है कि उसमें फिर अन्याय भी आपके साथ होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि आप जो है ना एक अगर उसको बिल्कुल सही वाली टीचिंग और जो लेयर्स हैं उसकी कि आपने किस तरह का इम्पेशेंट नहीं होना और किस तरह का होना है, ये सारी चीज़ें अगर सिखाई जाएं तो मुझे लगता है कि फिर आप सही डायरेक्शन में होते हो। और अभी आकर जैसे हम लोग चीज़ें लर्न कर रहे हैं और मैं कहूँगी कि वाकई में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और जो आपके दिमाग में थोड़ा सा उतरता है उसका निचोड़, तो आप उसको सीखते हो और समझते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत सारी जगहों पर गलत हैं लाइफ में जहाँ पर आप रिएक्ट कर देते हो। और मुझे पहले ये चीज़ें समझ नहीं आती थी कि जी जो रिएक्ट करता है वो बंदा वीक होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा करता था कि नहीं, अगर आपको कोई भी बात गलत लग रही है फ़ौरन से आप उसको ना कह दें अगले बंदे को, तो मतलब
एक तरीका होता है कहने का, मुझे ये लगता है। ये नहीं होता कि भाई हर बात जो है वो कहने वाली नहीं होती। आप किसी को ज़रूरी नहीं कि गैर ज़रूरी जगहों पर अपना रिएक्शन दो, क्योंकि जो वो गैर ज़रूरी रिएक्शन है ना वही शो करता है कि आप बहुत इंटरनली वीक हो। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती भी हूँ अब के टाइम में जिनमें बिल्कुल पेशेंस नाम का मतलब कुछ भी नहीं है, नुक्ता भी नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि उनको ये लगता है अगेन कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना इन रिटर्न वैसे चीज़ें नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये दिमाग खुलना जो है वो किसी किसी का मतलब काम होता है। वैसे बीच में जो स्वामी जी ने जो मंक थे उनकी एक एग्जांपल दी, तो सीरियसली मेरे जहन में ये बात आई कि वो मंक थे तो उनको इस तरह का एक इस तरह की स्थिति में वो चल रहे थे। हम तो बहुत आम से लोग हैं और हम लोग बार बार ट्रैप होते हैं, और ये डेली की प्रैक्टिस है सीरियसली अपने आप को अपलिफ्ट करना इन चीज़ों में से। क्योंकि अगर हम लोग ये कह लेना एक मरतबा सुनने के बाद हम लोग को समझ आ जाएगी, ये इस चीज़ का मंत्रा नहीं है। आपको हम डेली बेस पर एफर्ट करनी पड़ेगी। यार असल में ना मैंने जो एक चीज़ परखी है अपने आप को भी देखकर, दूसरे लोगों को भी देखकर, कि हम सोचते हैं जो हमारे साथ हो रहा है ना वो हमारे जो है ना सब्र से जो है वो ज़्यादा जो है उसका इम्तिहान जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना, आप पे हमेशा जो है ना चीज़ें भी उतनी आती हैं और हमेशा वो आपको कुछ जो है वो सिखा कर जाती हैं। और ये भी हकीकत है, बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि भाई सब्र की उनकी इंतहा जो है ना यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। जब आप उन्हें कहते हैं कुछ तो उसी टाइम उसका जो है रिएक्ट जो है वो दे देते हैं। पहले मैं अपने आप को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता था, लेकिन अब आकर जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल जो है वो हो चुका हूँ। मैं चीज़ों का इतना ज़्यादा रिएक्ट जो है वो नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है बाद में अब देखेंगे क्या होता है। में ये चेंज है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस चीज़ में अपने आप को जो है ना वो कर लिया है। फिर उसके बाद दूसरा जो है ना भाई वक्त आने यानी कि ऐसे पहले आपको जो है ना अपना आप जो है ना वो संभाल कर जो है वो रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी के आगे भी आप जो है वो खड़े हो गए कि भाई नहीं इस तरह है उस तरह है। जैसे जो है स्नेक की जो है एग्जांपल दी गई कि भाई आप बेशक काटे मत, लेकिन जो है ना अपनी सेफ्टी के लिए आप जो है ना वो यानी कि अपनी ताकत जो है, हाँ बिल्कुल, उसको भी मत भूलो। उसको भी मत भूलें बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम लोग जब बहुत ही नॉर्मल एक स्थिति में आते हैं ना तो लोग उस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं और फिर वो आप पर ही अटैक करना हावी होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि इस चीज़ को इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर दो लोगों में से कोई एक बंदा जो है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो रहा है ना कि चलो मामलात सही हो जाए, और एक आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है कि नहीं भाई ये तो अब जो है सुन ही नहीं रहा तो हम चाहे जो मर्जी कर लें, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि चीज़ों को हैंडल करना जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरीके से डील करते हो ऐसे लोगों के साथ, और कि वो आपको मैनिपुलेट ना कर सकें या आपके साथ गलत रवैया जो है कि वो आपको ही हर्ट करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें तो वाकई में मायने नहीं रखती हैं। और तीसरे वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक मैंने ना एक मतलब जिसमें स्वामी जी ने बोला ना कि लाइक आप लोगों को इंक्लूड ही ना होने दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मैटर्स इसीलिए ख़राब होते हैं क्योंकि हम लोग डिस्टेंस नहीं मेंटेन रखते। लोगों की सोच ओपिनियन हमारे लिए बड़ी मैटर करना शुरू हो जाती है, गैर ज़रूरी। इनफैक्ट मैंने ना एक एक्टर थे उनकी ऐसे रील में ही वीडियो देखी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनकी ये वाली बात। उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट खुद क्यों नहीं लिखते, आपके हाथ में पेन है, आप खुद अपनी मर्जी से लिखो जिस कैरेक्टर को आपने इंक्लूड करना है, जिसको आपने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अगर कोई इंसान आ रहा हो तो उसको मत ऐड करो लाइफ में, गैर ज़रूरी है, निकालो बाहर उसको। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग यही चीज़ करते हैं, हम एक मुद्दे को इतनी मर्तबा रिपीट करते हैं जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, स्पेशली टॉक्सिक लोगों को, कि वो एनर्जी वो चीज़ें हमारे दिमाग पर, ये मेरा तो वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि आपका जो चैन है ना वो ख़राब करना शुरू कर देती है, मतलब आप पीस वाली स्टेट में नहीं रहते। सो मुझे लगता है कि टॉक्सिक लोगों को वाकई में अपने आप से दूर रखने के लिए जो एक आप कह लो कि एफर्ट नहीं, एक जो तरीका कार है वो यही है कि आपको डेली बेस पर एफर्ट करनी है, आपको फिल्टर करना उन चीज़ों को और उनको एक डिस्टेंस पर रखना है, और ये भी नहीं कि उनके सामने अपने आप को वीक शो करना है कि भाई आप बहुत ज़्यादा वीक है। और मुझे लगता है कि जब आप धर्म का पालन करते हो तो उस टाइम पर आपकी पर्सनालिटी भी इस तरह की बन जाती है कि धीरे धीरे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर जाना शुरू हो जाता है बिना बोले ही। अच्छा, एक और चीज़ वैसे मैं बोलूँगी जाते जाते कि लाइक मुझे पहले ऐसा लगा करता था कि जब हम अच्छी बातें सुन लेते हैं ना, उसको समझ लेते हैं ना, तो बस हमें समझ आ गई हैं।
लेकिन वो समझ आ गई है इतना काफ़ी नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, आपको रोज़ एफर्ट करनी पड़ती है, आपको रोज़ डील करना पड़ता है डिफरेंट बिहेवियर्स को, डिफरेंट ओपिनियंस को, डिफरेंट सिचुएशंस को। तो और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपका जो टेस्ट होता है वो यही होता है। सो जितना हम इसको पास कर लेते हैं उतना हम में धैर्य भी आ जाता है और हमारी लाइफ भी सुकून में आ जाती है। बट समटाइम्स ब्लास्ट भी हो जाता है धैर्य, तो फिर उस स्थिति में बंदा कहता है बस भाई वो गड़ा फोड़ जाता है फिर। हाँ, सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इन रूल्स को फॉलो करता है, इन स्टेप्स को फॉलो करता है, और या अगर आप किसी और स्टेप को फॉलो करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।